Very good morning, children. I'm your English teacher, Mr. Devesh Singh. This is a new video for you. Cooking dinner from part 4, section 1. A very nice chapter, students, for you. You can expect to see the page of this chapter, to see the scene of this chapter, that definitely this is very interesting chapter. Now let's see. The chapter name is Cooking Dinner. This piece is an extract from The Children of the New Forest by Captain Frederick Marryat. ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक छोटा सा पार्ट है जिसका जो कंप्लीट जो सेक्शन है उसका नाम है द चिल्ड्रेन ऑफ द न्यू फॉरेस्ट बाय कैप्टन फ्रेडरिक मैरियट. जैकब आर्मिटेज, a kind-hearted forester, rescues the children of Colonel Beverly from the English Civil War. Here is a character named Jacob Armitage, who is a very kind-hearted forester, जो बहुत ही एक दयालु फॉरेस्टर थे जिन्होंने कर्नल बेवरली के बच्चों को यहाँ पे वो रेस्क्यू करते हैं, बचाते हैं इंग्लिश सिविल वार से. इंग्लिश सिविल वार से तात्पर्य है एक ऐसा युद्ध जो राजाओं और पार्लियामेंट्रियंस के बीच 1642 से लेकर 1651 के बीच हुआ था. दिस वार इज नोन एज इंग्लिश सिविल वार इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. So this kind-hearted forester rescues to the children of Colonel Beverly and brings them up as his grandchildren. और फिर उन सबको बचा करके, सेव करके, रेस्क्यू करके वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की तरफ उन बच्चों को अपने पास ले आते. The children adopt to a new life in the forest. The children who were extremely in fright, they were afraid of so much. Finally they got a good expectation, a good hope. They got a good hope to see this man, and they adopted a new life in the forest. It was a sense of relief for those children. Jacob arrived at the cottage and found the children outside the door. Jacob, the man, came to the cottage and he also brought the children. He sent them, he saw them outside the door watching for him. Everyone was watching him. They all hastened to him. जैसे ही सब बच्चों ने उनको देखा वो जल्दी से उसके तरफ बढ़े. hasten mean hurriedly, जल्दबाजी से, quickly. And the dog rushed before them. और उनके आगे आगे डॉग भी दौड़ता हुआ आया to welcome his master, अपने उस मास्टर का स्वागत करने के लिए, मालिक का स्वागत करने के लिए. Down, smoker, good dog. Down, smoker replied, very nice dog, very good dog. Well, Mr. Edward, I have been as quick as I could. And he said, I have been as quick as I could. जितना क्विक मैं एक्शन ले सकता हूँ, क्विकनेस अपनी शो कर सकता हूँ, उतना ही क्विक वो वहाँ पे अपने आप को पा रहे हैं. हाउ हैव मिस्टर हम्फ्री एंड योर सिस्टर बिहेव्ड?
एंड ही आस्क्ड कि मिस्टर हम्फ्री और तुम्हारी सिस्टर ने कैसा बिहेवियर किया, बट वी मस्ट नॉट रिमेन आउटसाइड टुडे। लेकिन आज हमें बाहर नहीं रहना चाहिए। ही सेड दैट वी मस्ट नॉट रिमेन आउटसाइड टुडे वी didn't want to live outside, and he also showed them that it is not good to remain you outside because the troopers are scoring the forest। क्योंकि जो ट्रूपर थे, जो सिपाही थे, जो सैनिक थे, वो जंगलों में उनको खोज रहे थे, कभी भी उनकी खोज करके और उनको मार सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम लोगों को बाहर रुकना, बहुत देर तक रुकना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो सिपाही है, जो सैनिक है, वो तुम लोगों को जंगल में खोज रहे हैं। एंड मे सी यू, और अगर वो तुम्हें देख लेते हैं तो निश्चित रूप से इट विल बी डेंजरस फॉर यू। लेट अस कम इन डायरेक्टली, इसलिए तुम लोग डायरेक्टली, इमीडिएटली, जल्दी से तुम लोग घर के अंदर आ जाओ। फॉर इट वुड नॉट डू दैट दे शुड कम हियर, क्योंकि अगर तुम लोग इसमें देर करते हो तो वे लोग यहाँ पे आ जाएंगे। सो बिफोर कमिंग द सोल्जर्स वेरी सून यू इंटर इनसाइड ऑफ द हाउस। Will they burn the cottage down? Inquired Alice. Among the children there was a girl named Alice. Alice replied that if they will reach here, if they could see us, will they burn the cottage down? तो क्या वे इस कॉटेज को जला देंगे? As she took Jacob's hand, जैसे ही उसने जैकब के हैंड को पकड़ा, जैकब ने जैसे उन बच्चों को अंदर लेने के लिए उनको हाथ को पकड़ा, वैसे ही एलिस ने वहाँ क्वेश्चन किया कि अगर वे लोग क्या देख लेंगे तो क्या हमें इस झोपड़ी सहित हमें यहाँ पे झोपड़ी में जला देंगे, इस झोपड़ी को जला देंगे? Yes, my dear, I think they would. Jacob also replied, yes dear, it is also my expectation that they would, कि वे जला देंगे, वे इस झोपड़ी में आग लगा देंगे। If they found that you and your brothers were in it, अगर उनको ये पता चलता है कि तुम और तुम्हारे भाई यहाँ पर हो, तो डेफिनेटली दे कैन डू इट, बट वी मस्ट नॉट लेट देम सी यू। बट जैकब एट वंस expressed his views to provide relief them that you must not worry, we must not let them see you, हम उन्हें तुम लोगों को देखने नहीं देंगे। अर्थात ऐसा कंडीशन नहीं आएगा कि उन लोगों को पता चल पाए कि तुम लोग यहाँ पर छिपे हुए हो। They entered the cottage, और फिर सारे बच्चे उस झोपड़ी के अंदर इंटर कर गए, which consisted of one large room in front. When the children entered into the cottage, at that time they found that the cottage consisted of one large room in front. फ्रंट पर एक बड़ा सा कमरा था, एक बड़ा सा कमरा सबसे आगे था, and two back rooms for bedroom, और फिर उसके पीछे दो बेडरूम थे, और देयर वाज आल्सो अ थर्ड बेडरूम विच वाज बिहाइंड द अदर टू,
और उन दोनों बेडरूम के पीछे एक और थर्ड बेडरूम था जो कि उन दोनों बेडरूम के पीछे था। एंड आई डिड नॉट हैव एनी फर्नीचर इन, और उसमें कोई दूसरा फर्नीचर वगैरह नहीं था, कोई फर्नीचर नहीं था। दैट वाज फुल्ली एम्प्टी। नाउ लेट्स सी what we can have for dinner, said Jacob. Let's see। जब बच्चे सारे अंदर आ गए, उस पूरे झोपड़ी को बच्चे सुपरवाइज कर लिए, देख लिए। अब यहाँ पे बच्चों का एक क्वेश्चन था कि अब देखते हैं कि चलो अब लेट्स सी, अब देखते हैं, अब यहाँ हमें देखने दो कि अब व्हाट वी कैन हैव फॉर डिनर, हमारे लिए डिनर के लिए है क्या, क्या डिनर के लिए व्यवस्था हो सकता है, क्या कुछ है डिनर के लिए। सेड जैकब, कम वी मस्ट ऑल बी यूजफुल, हु विल बी कुक। देन ही सेड, आ जाओ, वी मस्ट ऑल बी यूजफुल, इट विल बी, वी मस्ट ऑल बी यूजफुल, या हम सब यूजफुल होंगे। हु विल बी कुक, लेकिन कौन भोजन बनाएगा, कौन भोजन कुक करेगा। आई विल बी कुक, सेड एलिस। मीनवाइल एलिस रिप्लाइड, डोंट वरी, आई विल बी कुक इफ़ यू विल शो मी हाउ, अगर आप लोग मुझे दिखा दें कि कैसे क्या होगा। डेफिनेटली आई कैन कुक द फूड, एलिस रिप्लाइड दिया। तो फाइनली एलिस वहाँ पे भोजन पकाने के लिए तैयार हो गई। अगर आप सभी लोग चाहेंगे तो उसके बता देंगे, हिंट कर देंगे, तो डेफिनेटली शी कैन कुक द फूड। ओके।